श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। હવે પ્રકાશ ઉપનો છે, હવે પ્રકાશ ઉપનો છે। હવે કરું તે અસ્તુત આધાર બલવ સુનો બિનતી। આતલા દિવસ મેં નવો લખ્યા મારા બાલૈયા માયાની લહરે મુને જોર હતી। જીવા જગાવી બાજી બરમાં તે બાલાજીને લાગુ પાયે। શોભા તમારી તીત શબ્દ થકી મારી દેહ આજીવ્યા શબ્દ માયે। કેની પેરે હું કરું અસ્તુતા મારા જીવને નથી કાંઈ બલ્લા। મારી જોગબાઈ સર્વે અસ્થિર બસ્તની કેમ બર્ણભૂ શોભાને ચલા। આગળ જીવે કીધી અસ્તુતા ભગવાનજીને બલી માતા। પંડિતાઈ ચતુરાઈ ને પ્રવીણાઈ કિવતા માડે છે કરી ખાંતા। તે પ્રવાહી વચન જ્યારે જોઈએ તેમાં કોચે બારે વચન। એતા દિયે અચેત થકા ઉપમા પણ મુને સાલે તે મન। અજાન થકી દિયે બળી ઉપમા ત્યારે જાણ્યાનો કીવો પ્રમાણ। એક વચન જો પડે મુખ પર ભાઈ તે તો નવો જાનુ નિરબાન। તે પણ ચિત્ત દય નવો સાવલ્યા નહીં તો પૂર પૂજ્યો પ્રગલા। આધા ગુણ સગલા જોદ જુજવા તેને નવો લેવા દીધું ટીપું જલ। હવે તે ગુણને કહી દીધે ઉપમા પીત પીત બુડી બુધા। પ્રથમ તુમો બળ મંદાની તે કાન લીધીએ નિધા। સાગર પુર ભયું રે સનંદે તે કાન લીધું એ જલ। તે બુધ પાપની હું મેલું પર હરી જે થઈ મોસુની ભલા। હવે રે બુધ દી હું કહું તુને તું થાય બુધનો અવતાર। શ્રી બાલાજીને બલવ કરે એક કિરણ મૂકે લગાર। બીજી બુધ કે આવે અમ સમ બળ હું બુધ માએ બુધ અવતાર। બુધે કરી બાલાજીને બલવી કરીશા એ બુધ નહીં મુખ લગાર। બુધજી રહ્યા છે આસરે જે છે બુધ અવતાર। એ બુધજી વિના બીજા બાપડા કોણ કાંદે એ સાર। સાર કાંદે શુદ્ધ કરીને બાની બેહદ ગાયે। તન અવતાર તે બુધ તણો જે રહ્યો આવીને પાયે। તે નહીં વૈકુંઠ નાથને જે રસ બુધ અવતાર। શરણ ગ્રહ્યા બાલાજીના તણા કાંઈ એ નિધ પામે સાર। સાર પામે સુખ ઉપાનું તન ધન એ અવતાર। આજ લગે બ્રહ્માંડ માએ કોઈ એ મન પામ્યો પાર। એ અવતારની ઉપમા કાંઈ લીલા અખંડ થાશે। વચન યન વિધે વિધે કાંઈ બાની બ્રહ્માંડ ગાશે। હવે રે શ્રવણ કહું હું તુને તુને ધનીએ કયા વચન। કાન લીધા તે વચન બચે કે ન ફીર ફીટ બુડા કરન। મંદાન તુજા ઉપર રે શ્રવણ લેવાય તારે ભલા। ધનીએ ધન રેડતા નવ જયું નેટ કાન થયા નિભલા। હવે શ્રવણ તું સંભાર આપો થાય બચી કે ન બીરા। બાની જે બલવતની ગ્રહે જે દૃઢ કરી ધીરા।
બીજા બીજાના વચન સુનિયાજી શ્રવણ કહે સમારી જે મનોરથ હતા મારા જીવને તે પૂરી વાલે આશા અમારી હવે સુનિશા હું જોપે કરી નવો મૂકું એક વચન એ બાની ગણું હું બલાવ કરીશ જેમાં સૌ કોઈ કહે ધન ધન હવે તુને હું કહું રે નિદ્રા તું નીચ નિવલ નિરધાર ગુણ સગલારી તું ફરી બલી નવ લેવા દીદી નિરાધાર તું તા કેવલ માયા રૂપ પાપની બોલ્યા લઈ તે બાથ શ્રવણ એ તે સાવલવા ન દીધા આલમ બળાઈ તારે સાથ કારણ ઘણી બીજા આવે જીવાને જેમાં મીના બીત્યોમાં એ જાલ જેણે નેત્રે નિધા નિરાકુ નિર્મલા તે નેત્રે આદિ થઈ પાલ પીત પીત પૂણી દુસ્ત પાપની હવે તજુ તુજને નિરધારા આગે તે અવસર ચૂકવ્યો હવે નિરખું જીવનો આધાર આગે નિંદ્રા થઈ નિબલ મોસું કારણ ઉતી ગણી પર હવે તું જીવને આવીશ ઢુકડી કર સંસારમાં એ ઘર નિંદ્રા કહે જ્યારે જીવ જાગ્યો ત્યારે મેં કેમ રહે બાએ ચરણ ફોલ્યા જ્યારે દનિતના ત્યારે જાઉં છું લાગીને પાયે હરુ ચડી તું ત્યારે આવી જ્યારે મળ્યા મુને શ્રી રાજ પીઠ પીઠ બુડી હુવન અકરમન તું સરજી શ્યાને કાજ પીઠ પીઠ બુડી તે દા ચૂકવ્યો હવે કરે કાંઈક તું ભલા જીવન જીમલિયા જીવને તું થાય સંસારમાં ને ચલા હરુ ચડી કહે હું બોલાવંતી મુને ન લખે કોઈએ છાની થઈને આવું જીવમાં બાજુ તે સાજુ ન હોય જ્યારે ધની પોતે ઘર સંભારે ત્યારે એ ચોરી કરે કેમ ચોરા હવે અવલા માહિતી સવલું કરું જઈ બેસું સંસારમાં એ જોરા મને મારો બલવ મળ્યા રે બાલે સરી જાણું સેવા કીધે અરકાંત તેને સમય આવે ઉભી તું અકરમન પીઠ બુડી શાંત એ નિદ આવે કેમ શાંત કીધે કેમ બેસી કરાર દોડ કીધે સગલા અંગાસું શાંત કીધે સંસાર શાંત કહે હું ત્યાં લગે હું તી જ્યાં જીવનની નિંદ્રા હતી જોરા હવે જાઉં છું સંસારમાં એ તમે કરો ધની શું કલોલા હવે રે તુને કહું લોભ લાલચી પીત પીત બુડા અજાન નવ કીધો લોભ ખરી નિદાનો જેથી અરથ સરે નિર્વાણ હવે મોથાસો તમે માયા ટુકડા માયા લોભ લાલચ બને જોડા લોભ આવો મારા વાલાજીમાં જેમાં કરું રાત દિન ડોળા લોભ લાલચ કહે શોભાંક અમારો જ્ઞાન ભલે જીવને સારા હવે જે તમે કહ્યું અમને તે જોજો કેમ ગ્રહું છું આધાર પીત પીત બુડા ત્રસ્ન અવાગની તું નિવલ થઈ નિરધારા બીજા ગુણ સગલા ત્રપત થાય પણ તુને કોઈ વાવો ઠણ બંધાર હવે તુને કેમ કાઢું રે તૃષ્ણ તો શું મારે ઘણું કામ તૃષ્ણ આવો મારા બાલાજીમાં જેમાં બસ કરું ધની શેરી ધામ તૃષ્ણ કહે હું કેમ ન મૂકું જે આત્માએ દેખાડ્યા આધાર તમે જઈ બીજા ગુણ સાંભળો એ હું નહીં મૂકું નિર્ધાર મોહ કહું સુન બાટડી મારી મુને મળ્યા તા પ્રાણો આધાર પીત પીત બુડા દુરમતી તે તોય ન છાડ્યો સંસાર હવે રે આવો તું બાલાજીમાં માયા શું કર જે બીછો ફરી જોગભાઈ આવી મારા હાથમાં હવે કેવો જોડ જોઈએ મારો મોહ મોહ કહે મારી વાત છે મોતી મુને જાને સૌ કોઈ જેને ઠામે હું બેસું ત્યાંથી અલગ ન કરી શકે કોઈ જેની દેખાડી તમે મુને તેને જડ થઈ બલગ હું આંધા મારી બીજતા એક જ છે બીજી ન જાણું સનંદ હરક શોખ તમે થયો રે માયાના પીઠ અવાગી અજાન તની મળે તું હરક ન આવ્યો ચાલે શોખ ન આવ્યો નિર્વાણ નિકર તમે નિવલાઈ ઘણી કીધી
એવા અંધ તયા વાગે હવે તમને હું શું કહું જે જીવે ન વાર જાગી હવે આવો તમે ખરી નિદમાં આગે ચૂક્યા વસર એક લીધો લાવો શ્રી બાલાજીનો બીજો હરકે જાગું મારે ઘર હરખ કહે હું શું કરું જ્યાં ધની ન લીએ ખબર શોક કહે જ્યાં ધની નવો કહે ત્યાં અમે કરું કે પર જોડા અમે બને છઉ બલિયા હવે જોજો અમારી ભાત ધની તમે દેખાડ્યા મને અમે તે ગ્રહું છું હરકાંત મદ મત્સર અમે અહંકાર તમે જોડ કીધી સંસાર ફીટ ફીટ ગુણ બુડા એવા બલિયા તમે બિછોડ પાડ્યો મારે આધાર તમે ત્રણે જોડા એક સમ થઈ કાનવ કીધી સમી વાત જ્યારે જીવન જી મળ્યા જીવને ત્યારે તમે કાનવો કીધો ઉલ્લાસ હવે રે તમે મારી પાસે થાઓ મને બલી મળ્યા મારો આધાર ભલે જુદા કર જો બુદ્ધિ કરી જેમાં છાંટો ન લાગે સંસાર ત્રણે જોડા અમે જોરાબર ચાલુ એકી વાત બાલાજીને ગ્રહી કરીને જીવને બેલા કરી દઉં સાથ હવે એવા જોડા સબલ તમે બલિયા મળ્યા મોસું ખોતી ભાવ જોગવાઈ ગઈ મારે આંધતી પણ તમે ન ગયા સહેજ સ્વભાવ માયાને મળીને રે મૂરખો મોસું થયા તમે કુડા ફીત ફીત બુડા દુષ્ટ અભાગી એની બાતે ન થયા રૂડા સહેજ સ્વભાવ બંને સરકી જોડા મારા જોડ સબલ તમે જવાન જે અનિગમાં તમે થાઓ તે જીતે નિર્વાન હવે તમે હું કીજી કહું છું મારા સબલ થાજ સુજાન સહેજ સ્વભાવ કરજો બાલાજી શું બાલપન માં માનજો કે નિયાન સહેજ સ્વભાવ બને અમે બલિયા જો કરે કોઈ કોટો ઉપાય જે અમે બાટ ગ્રહું જોપે કરી તે કેને નવો પાછી થાય હવે જોજો તમે ચોરા મારે બાલોજી ગ્રહ હું કરી ખાંટ પૂરો પાસ દઈ રંગ ચોલનો પાડું પટોલે ભાત મમતા તું માયા તની નિવલ થઈ નિરવાન ફીટ ફીટ બુણી દુષ્ટ પાપની કીધી મુદની ગણી હાન હવે મમતા આવો મારા બાલાજીમાં બીજો મુખ સરવ સંસાર સવલ સંગાત ન થાય મુજ પાસે મને મળ્યા છે મારો આધાર હું સંગાત ના છું જો તમારી તમે લેવો એ નિદા એ નિદા અલગી થવા ન દઉં કરો કારજ તમે સીધા હવે તુને હું કહું રે કલ્પના ફીટ ફીટ બુડી અકરમના ફોકતિયાની ફજીત તે કીધા કાંઈ અમને અતિ ગન હવે કરમ ન થા તું આવો કલ્પના સેવા માએ કર વિચાર બાલીઓ બાલાજી મુજને મળ્યા લાવ લવ આવી માએ સંસાર કહે કલ્પના એ કામ મારો હું કરું બીજા બીજા ના વિચાર અંગ એકે નવો રાખું પાછું સેવાની સેવા રાખું સાર બેર રાગ બને જોદ જુજવા સામે સામે શિરદાર બેર કીધું તમે બલવા જીશું રાગ કીધું સંસાર તમે મસું બુડાઈ હતી કીધી તમને દઉં કટારી ગાય એવો અવસર આવ્યો મારા હાથમાં પણ તમે ભૂલવ્યો મુને દાય મારે મનાન છે તમા ઉપર તમે કાંઠયા મોસું એમ હવે હું કારી આવો અમ પાસે હું લાવ લઉં બાલાજીનું જેમ જોરા કરો તમે જોડા જુજવા રાગ આવો માયા ડાર બેર બીજે બીજે કથ નાઈ શું જય બેસ માય સંસાર બેર કયો એ શોભાંક મારો જાદની પોતે ઘર ન રાખે અમે આ ફરવા કેમ કરી ગ્રહું જીવ ચીની ન દાખે રાગ કહે હું રૂડી બેરે હલમલ કરું આધાર જીવદાની બચે અંતર ટાલું તો બખાન જો આવાર હવે બેર કહે મારી બીજા જોજો કેવી કથ નાઈ કરું સંસાર કોઈ ગુણ જો જીવશું જોર કરે
તો ઉતારી બધું તરવાર પિતા પિતા બુઢા સ્વાદ કહું તુને મુને મળ્યા તા મીઠા દાર ય સ્વાદ મેલીને સખિયા તું સ્વાદ થયો સંસાર હવે રે સ્વાદ તું થાય સુહાગી જોજે બલવની મીઠાશ જ્યારે તું આવ્યો એ માએ ત્યારે કહીએ ન કર વિજયાસ જ્યારે કહે સ્વાદ કહે જ્યારે એ સુખ લાગ્યો ત્યારે અવક થયો મોહ જલા ઉબલ હતો તે તલી ગયો હવે સવલો આવ્યો બલ્લા હવે રે કહું તુને ગુણ ના ઉતાર તે બલવ શું કીધો બ્રડ મેં તુને જાણ્યો હતો સ્વાગી પીઠ પીઠ કમલ ફેરના ક્રોડ મેં તુને જાણ્યું પોતાનો પણ નવ સીધ્યું તું માહિતી કામ પીઠ પીઠ બોડા દુસ્ત વાગી રહી મારા એડા માએ હામ હવે ક્રોડ કમલ ફેરે નાખ તું ઉદ ફેર જે કમલ સંસારે એ અબો અકરમિકા થઈ બેઠો તેમ કર જેમ સૌ કો સંભારે ક્રોડ કહે હું ગનવે જોરાવર પણ ધની બિના કરું કેમ હવે જો કોઈ ગુણ જીવને સંભાવે તે તો ત્યારે તમે કહે જો મુને એમ હવે ને કહું તુને ચાક ચકરદા તું ચડી બેઠો જીવને માથે આપ પુનઃ ઓળખ્યા અવાગી ફોકટ ફેરવ્યો જીવ નિગાતે અંધ એવો કાં થયો રે અવાગી તે નવ શૂન્ય આતલો પોકાર પીઠ પીઠ ભૂડા ફેર ન રાખ્યો ત્યારે મળ્યા મુને આધાર મન સમ્રાટ સવાલ તું બલિયો તારા બેગન કિયો કહું વિસ્તાર સુજ સબલ માય તું ફરતો આડો ઉભો દૃઢ પાર હવે તું માય કામ મારે છે અતિ ઘણું જોશું તારો જોર મેવાર પછ બીસ પખ માય તું ફરજે રકે અદકીન રહે લગાર સંકલ્પ વિકલ્પ છે તું માઈ તે તું કર સેવાની મન ઉમંગ આન તું અતિ ઘણી શ્રીદામદની મળવાની મન કહે મારી બાત છે મોતી અને સકલ બીજા હું જાણું ગજા પખે ચડી બેસું માટે જીવને જોપે બસાણું જ્યારે જીવ પોતે જાગૃત ન થાય ત્યારે કરું કેમ અમે જોર અમારું ત્યારે ચાલે જ્યારે સામા જાગી બેસો તમે હવે પેરા જોજો તમે મારી કરું મારા બલનો વિસ્તાર નિધ લઈને દઉં તદકીન તો કહે જો ગુણ શિરદાર કોઈ જો કેલ જાને અમને તો ફલ લઈ દઉં તત્કાલ સેવાની સનંદિત દેખાડું જેને ધની ન થાય અલગ કોઈ કાલ પરમ પ્રાંત કીધી તમે ભૂડી એ મન કરે બીજો કોઈએ તારતમાં અજ બાલે બાલો જીવો લખ્યા તમે આડા ફરી ભલ્યા તો એ તો આકાર તમારો ઓતરે અવાગી તો કટકા કરું તરવારે પિંજી પિંજી પુરજા કરી ભલી ભલી કાઢું એઠલ ધારે હવે જો પે થઈને જાઓ સંસારમાં એ છે તેવા તાઓ તમે જેમાં અજબાલે શ્રી બાલોજીને ઓળખી એમાં મૂલ જોત દેખું જેમાં અમે પરમ ભ્રાંત કહે સાવલો જીવાજી અમને મારો તરવારો કિયે ઠિકાને નિદા કરો તે આપ પૂકા ન સંભારો જે નિદાની પોતે નિદા પામે તે કેમ સુએ કરારે આપ પોતે ખબર ન રાખે અને ફોકટ મને મારે જ્યારે તમે જાગે જોરાબર ત્યારે અમે જાઉં છું સંસાર ભલે મળ્યા ધનીજી તમને હવે કરો અજબાનો અપાર પીઠ પીઠ લજાટું થઈ લૌકિકની બીજા બાંધ્યા કુટુંબ શુક્ર કરમ તામદની મુનિ ટેળવા આવ્યા ત્યાં તુને ના આવી શરમ દુસ્ત પાપની તે શું કીધું આગળ કરી સૌ કેમ કે પેરે હું મોએ ઉપાડીશ મારા ધની આગળ ન આવી શરમ હવે રે શરમડી કહું તુને તું જોજે મૂલ સગાઈ આગે અવસર મોટો ચૂકી હવે ફરી આવી જોગવાઈ
રાજા કહે હું ઘણું એ ભૂલી, હવે બાલાજી શું મુખ કેમ મેલું, દુસ્તર ઉપર આગળ જવું તો જેણે બોલાવી મને પહેલું, પીઠ પીઠ ભૂડી આશા તું થઈ સાગરની, તની મેલા બિસારી, જીવને સફળ જે હાથ લાગ્યું, ભૂણી તે તું બેટી હારી, યા ફળ તે મૂકી કરીને નીચ બસ્તકા લીધી, એ દોષ સર્વે જીવને બેઠો, તુને શિકામન ન દીધી, હવે આ સદાની ધની મોતી, થાય સૌ બિચારી, મન નહીં રાખું કોઈ આસડી, હવે લેજો સુફલ સંભારી, અચેત ગુણ તું આવ્યો અકરામી, તાક થવા નવ દીધી, જીવને જે નિદાત લાગી, પુણા તે જોઈ કીધી, એ નિદાની કે બાદ કરું, પુણા પીઠ પીઠ ગુણ ચેત, તુજા બેટા તીવ્રતા ન આવી, નહીં તો એ નિદા હું લેતા, અચેત કહે હું સાગરનું, તે જાઉં છું સાગરમાં એ, નિદ તમારી તમે પામો, ગ્રહું તીવ્રતા ભાએ, પીઠ પીઠ બુડા ગુણ કહું તીવ્રતા, મને મળ્યા તદામ દાની, એવા અવસર કોઈ નિગમે, તે કીધી મોસું બુડી ગાની, ભલી અવસર આવ્યો છે તમે, હવે તીવ્રતા તું સંભારે, રાત દિવસ તું જીવનને ડોળાવે, એક પાવ પલમાં બિસારે, તીવ્રતા કહે હું બલવંતી, જીવને દઉં જોરા, બસ કરી આપું ગણું તમારો, કરું પાદરા દોરા, શીલ સંતોષ હવે આવજ ડુકડા, બાંધો સાગર દીપાલ, ગુણ સગલ કે શું તેમ કરશે, નથી કાંઈ બીજો જંજાલ, શીલ કહે સંતોષ સુન આપણને કીધા છે પાલ, પરબત તને પુર સાગરના, માએ ભેબટ છે નીતાલ, આમલિયા અલેખ દીશે લય રો મેર સમાન, મસ જોરાવર માય છે મોટા, પાલ કરવી એને થામ, હવે બાજીએ પાલ ખરો કરી પાયો, જેમ કશે નહીં લગાર, પછી જલ પોતે જ્યારે તામ ગ્રેસો, ત્યારે સામો સ્વભા થાય અપાર, હવે એ પાલ અમે બાંધશું જીવજી, પણ તમે થાજવો તદ પર, અવસર બીજી બાર નહીં આવે, સવા સાત માલ્યો ઘર, હવે જાગ જીવ તું જો પે બલિયા, તુને કે દઉં ગાલ, મેં તુને ઘણું એ ફિટકાર્યો, પણ ચૂક્યો અવસરની નાલ, કઠનાઈ મેં જોઈ જીવ તારી, અતિ કરો નિકર અપાર, તમી ધમી તમીને ઠાક્યા, પણ નેત નવ ગલિયો નિર્ધાર, પણ નેત નવ ગલિયો નિર્ધાર, ચોપાઈ 115 પ્રકરણ 20, ચોપાઈ 525, બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય। प्रकाश गुजराती को प्रकरण 20 को हिंदी छाया। हे मेरा प्राणाधार प्रियतम, अब मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरे एक विनती सुनिए। इतने दिनों तक मुझे आपके स्वरूप की पहचान नहीं हुई, क्योंकि मायावी लहरों का प्रभाव मुझ पर अधिक था। सतगुरु धनी ने मेरी जीवात्मा को जागृत करके भ्रम दूर किया। ऐसे प्रियतम धनी के चरणों में मैं नतमस्तक होती हूँ। आपके स्वरूप की शोभा सुंदरता शब्दातीत है। मेरे शरीर की यह जीवा शब्द में सीमित है, इसलिए इस जीवा के द्वारा मैं आपकी स्तुति गुणगान कैसे करूं? मुझ में कोई शक्ति नहीं है। मेरे शरीर की रचना प्राकृतिक तत्वों अस्थिर वस्तुओं द्वारा ही हुई है, इसलिए आपके अखंड स्वरूप की शोभा वर्णन किस प्रकार करूं? पहले भी लोगों ने भगवान की स्तुति अच्छी तरह से की है। इसमें उन्हें अपनी पूरी विद्वता, चतुराई और दक्षता दिखाकर अपनी इच्छा अनुसार कविताओं की रचना की है। प्रवाह में लिखे गए उन वचनों को जब हम देखते हैं तो उन रचनाओं में कहीं कहीं
गुड़ रहस्य परमानंद सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म आदि भी प्राप्त होते हैं। इन महत्वपूर्ण शब्दों की उपमा अज्ञानतावश दी गई है, किंतु मेरे मन में ये ऊंचे शब्द खटकते हैं। इतनी बड़ी उपमा इस दुनिया के लोगों ने मूल तत्व की जानकारी प्राप्त किए बिना दी है, तो मूल तत्व का तारतम्य होने पर मैं आपको कौन सी उपमा दूं? ऐसे एक दो वचन प्रवाही में मुख से निकलते हैं, किंतु वे उसकी वास्तविकता नहीं जानते। मैंने वेदों और पुराणों को भी नहीं सुना है, न तो मैंने कवियों की चातुर्यपूर्ण कविता सुनी है। मैंने सद्गुरु धनी के मुखारबिंद से निकले हुए एक दो वचन ही सुने हैं। इनके द्वारा मैंने पुस्तक और प्रभाव के वचनों को जाना, अर्थात सद्गुरु के वचन पुस्तक और अन्य कवियों के वचन प्रभाव मार्ग के है। धनी जी के एक दो वचन भी मैंने मन लगाकर नहीं सुने हैं, अन्यथा सद्गुरु धनी का अखंड ज्ञान सागर की लहरों की समान हृदय में उमड़ रहा होता। समस्त गुण अंग इंद्रियां अपना अलग अलग प्रभाव लेकर जीव के लिए अवरोधक बन जाती है। उन्होंने ही सद्गुरु धनी के वचनामृत की एक बूंद भी लेने नहीं दी। अब इन गुण अंग और इंद्रियों को मौन सी उपमा दी जाए। हे पापिनी बुद्धि, तुझे धिक्कार है। सबसे पहले तू ही वहां पहुंची थी। तूने इस अखंड ज्ञान रूपी धन को क्यों ग्रहण नहीं किया? समुद्र के प्रवाह में उठने वाली बड़ी बड़ी लहरों की भांति सद्गुरु धनी के ज्ञान का प्रभाव उमड़ पड़ा, फिर भी उस अमृत रूपी जल को तूने क्यों प्राप्त नहीं किया? हे पापीन बुद्धि, मैं तेरा संग छोड़ रही हूँ, तू मेरे लिए निर्बल सिद्ध हुई है। हे बुद्धि, अब मैं तुझे कहती हूँ कि तुम बुद्धि के अवतार स्वरूप बन जा। धामधनी को प्रेम कर और उन्हें एक क्षण के लिए भी मत छोड़। जागृत बुद्धि प्रत्युत्तर देते हैं, ऐसी दूसरी कौन सी बुद्धि है जो मेरे समकक्ष बन सके? मैं तो वह बुद्धि हूँ जिसमें बुद्धावतार का अवतरण हुआ है। मैं इसी बुद्धि के द्वारा प्रियतम धनी के साथ प्रेम करूंगी, इसलिए मैं इस बुद्धि को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ूंगी। इंद्रावती कहती है, अक्षर की जागृत बुद्धि रास के बाद संवत 1735 हरिद्वार के कुंभ मेले के अवसर तक हमारे आश्रय में रही है, जिसे बुद्धावतार कहा जाता है। इस बुद्धि के सिवाय अन्य सब दया के पात्र कहे जाते हैं, इसलिए इस जागृत बुद्धि के बिना बेचारे अन्य लोग कैसे सार तत्व निकालेंगे? इसने शास्त्र पुराण की सार तत्व का निरूपण कर उनकी शुद्धि लेते हुए व्यर्थ वाणी का गान अखंड भूमिकाओं का वर्णन किया। धन्य है अक्षर ब्रह्म के बुद्धि के इस अवतार को, क्योंकि यह बुद्धि हमारे सद्गुरु धनी के चरण कमलों में आश्रय लेकर रही थी। वैकुंठ के स्वामी भगवान विष्णु को भी वह ब्रह्मानंद रस अप्राप्य है, जिसकी प्राप्ति अक्षर की जागृत बुद्धि को बुद्ध अवतार के रूप में हुई। इसने प्रियतम धनी के चरण कमल ग्रहण किए हैं, इसलिए ऐसे सार रूपी धन की प्राप्ति उसे हुई। तारतम्य निधि प्राप्त होने पर बुद्ध जी को अखंड सुख प्राप्त हुआ। अक्षर की जागृत बुद्धि का यह अवतार धन्य है। आज तक ब्रह्मांड में कोई भी इस प्रकार पर ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सका है। इस बुद्ध अवतार की उपमा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा जागने लीला तीसरे ब्रह्मांड अखंड होंगी और इसके वचन ब्रह्मांडों के प्राणी विभिन्न प्रकार से गाएंगे। हे कान, अब मैं तुझे कहती हूँ, जब धामधनी ने तुझे वह वाणी सुनाई तो तूने चतुराई से उन वचनों को क्यों ग्रहण नहीं किया? इसलिए हे दुष्ट कान, तुझे धिक्कार है। हे कान,
मेरा मुख्य आश्रय तुम्हारे ऊपर ही आधारित है। तुम्हारी श्रवण शक्ति के कारण ही सब सुनाई देता है। धामधनी के इस अखंड ज्ञान को बहाने में कोई कमी नहीं रखी, परंतु हे कान, तुम सचमुच निर्मल हो गए हो। हे श्रवण, अब तुम अपने आप को संभालो, समझदारी और बलवान बन जाओ। धामधनी की अखंड वाणी को दृढ़ता और धैर्य के साथ ग्रहण करो। कान कहते हैं, हमने धामधनी को वाणी विभिन्न प्रकार से सावधानी पूर्वक सुनी है। जो इच्छा हमारे हृदय में थी उन सबों को धामधनी ने पूर्ण कर दिया। अब मैं अच्छी तरह श्रवण करूंगा, एक वचन को भी नहीं छोड़ूंगा। इस वाणी से मैं प्रेम करूंगा ताकि सब मुझे धन्य धन्य कहेंगे। हे निद्रा, अब मैं तुझे कह रही हूँ, तू अवश्य नीच और निर्बल बन गई है। सब अंग इंद्रियों के लिए तू ही रुकावट बन गई है। तूने प्राणाधार धनी के धन अखंड ज्ञान को लेने नहीं दिया। हे निद्रा, तू तो मात्र पापिनी माया का ही स्वरूप हो। सब गुण अंग इंद्रियों को बस में कर तूने उन्हें डुबा दिया। कानों को तूने सुनने न दिया। आलस्य और जमाई तेरे साथी है। जिस प्रकार मछली जाल में फंस जाती है, उसी प्रकार जीव को घोर निंद्रा रूपी माया के मद ने अनेक प्रकार से घेर लिया। जिस आंखों के द्वारा धनी रूपी पवित्र धन देखना है, उनके आगे पर्दा बनाकर हे निद्रा, तूने आंखों की पल के गिरा दी। हे पापी निद्रा, तुझे बारंबार धिक्कार है। अब मैं अवश्य तेरा त्याग करूंगी। इससे पूर्व भी तूने प्राप्त अवसर को हाथ से खो दिया, परंतु अब तो मैं मेरे धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करूंगी। हे निद्रा, मेरे धनी जी के साथ जाने में तो तूने अपनी निर्बलता दिखाई। उस समय माया का नशा मुझ पर छाया हुआ था। अब तू जीव के पास नहीं आना, उससे दूर रहना, मायावी संसार में ही अपना घर बनाना। अब प्रत्युत्तर में निद्रा कहती है कि जब जीवात्मा जागृत अवस्था में आ जाए तब मैं किस प्रकार रह सकती हूँ। जब धामधनी के चरण कमल रूपी फल तुम्हें प्राप्त हुआ है तो मैं उन्हें प्रणाम कर विदा ले रही हूँ, अर्थात लौट रही हूँ। हे अरुचि गुण, तू भी उस समय आकर अपना प्रभाव दिखाने लगा जब मुझे सद्गुरु धनी की प्राप्ति हुई थी। हे पापी उल्टी कर्महीन अरुचि, तेरे इस विपरीत कर्म के लिए तुझे बारंबार धिक्कार है। तू किस कार्य के लिए उत्पन्न हुई है? हे पापी, तुझे धिक्कार है क्योंकि तूने इससे पूर्व प्राप्त अवसर खो दिया। अब तू कुछ बल लगा प्रयत्न कर। जीव को जीवनाधार धनी मिल चुके हैं। अब तू इस जगत में स्थिर हो जा। अरुचि उसका उत्तर देती है, मैं बलशाली हूँ, मुझे कोई भी देख नहीं सकता। मैं चुपचाप जीवात्मा में प्रवेश करती हूँ। मैं जिसको एक बार फेंक देती हूँ वह कभी भी सीधा नहीं हो सकता। जब जीव स्वामी अपने शरीर रूपी घर को संभालता है तो चोर किस प्रकार चोरी कर सकता है। अब मैं टेढ़ापन छोड़कर सीधे मार्ग पर आ गई हूँ। अरुचि से रुचि उत्पन्न करती हूँ और स्वयं संसार में जाकर अपने संपूर्ण शक्ति के साथ निवास करती हूँ। मुझे मेरे प्रियतम धनी मिल गए हैं, इसलिए मैं उनकी हर प्रकार से सेवा करूंगी। ऐसा विचार कर रही थी। हे भाग्यहीन, शांत धैर्य, ऐसे अवसर पर आकर तू खड़ा हो गया। हे पापी, इसीलिए तुझे भी बारंबार धिक्कार है। धनी रूपी अखंड धन प्राप्त होने पर किस प्रकार शांत होकर बैठा जाए। सब अंगों को कार्यरत करके दौड़ते दौड़ते मैं सेवा करूं और दुनिया की ओर धैर्य धारण करूं। धैर्य कहता है कि मैं तो तब तक ही था जब तक जीव पर अज्ञान रूपी निद्रा का जोर था। अब मैं संसार की ओर से मुख मोड़ता हूँ। अब तुम अपने धनी के साथ आनंद करो। जीव लोभ लालच आदि गुणों से
कहता है कि तुम दुष्ट और अज्ञानी हो, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। अखंड धन रूपी धामधनी को जाते हुए तूने लोभ नहीं किया, अन्यथा तेरे सब काम सिद्ध हो जाते। हे लोभ लालच, अब तुम दोनों माया के पास मत जाओ। मेरे प्रियतम धनी को प्राप्त करने के लिए अब तुम आ जाओ, ताकि धनी के पास जाने के लिए मैं दिन रात दौड़ा करूं। लोभ और लालच कहते हैं कि इसमें हमारा क्या दोष है। जब तक जीव को कुछ भी पता न हो तभी तक हमारा जोर चलता है। अब आपने हमें जो कुछ कहा है, देखना कि हम धामधनी को किस प्रकार प्राप्त कर लेते हैं। हे अभागिनी तृष्णा, तुझे भी धिक्कार है। तू भी निश्चय ही निर्बल हो गई। अन्य सब गुण संतुष्ट हो जाते हैं, परंतु तुझ में भूख का भंडार छिपा हुआ है। हे तृष्णा, अब मैं तुझे किस प्रकार निकालूं? तुझसे तो बहुत बड़ा काम करवाना है। अब तू मुझे प्रियतम मिलने की प्रति सहायभूत हो जा, ताकि मैं धामधनी को अपने बस में कर सकूं। तृष्णा उत्तर देती है कि जीव ने जिन धामधनी को दिखाया है, उन्हें मैं किसी भी तरह नहीं छोड़ूंगी। हे जीव, अब तुम जाकर अन्य गुण अंग इंद्रियों को संभालो। मैं निश्चित रूप से धामधनी को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। जीव अब मोह से कहता है, हे मोह, मेरी इस बात को ध्यानपूर्वक सुनो। मुझे मेरे प्राणाधार धामधनी मिले थे, किंतु हे पापी दुष्टमती मोह, तुझे धिक्कार है, क्योंकि इतना जानते हुए भी तूने संसार की माया नहीं छोड़ी। हे मोह, अब तुम धामधनी में आकर स्थिर हो जा और माया से अलग हो जा। मेरे हाथ से पुनः यह अवसर आया है, अर्थात सद्गुरु मेरे हृदय में विराजमान हो गए हैं। अब मेरा मोह कितना महान योद्धा है, यह मुझे देखना है। तब मोह कहता है कि मेरी बात तो बड़ी है, मैं तुम्हें भ्रम में डालकर मोहग्रस्त कर सकता हूँ। मुझे सब कोई जानते हैं। मैं जिस स्थान पर जाकर बैठ जाता हूँ, वहाँ से मुझे कोई दूर नहीं कर सकता। हे जीव, तुमने मुझे धामधनी रूपी अखंड धन दिखाया, इसे मैं अंधे की तरह जकड़ लूं। मेरी यही एकमात्र पद्धति है, अन्य कोई पद्धति मैं नहीं जानता। हे हर्ष शोक, तुम दोनों माया के बन गए। हे भाग्यहीन मूर्खा, तुम दोनों को भी धिक्कार है। धामधनी सद्गुरु के मिलने पर भी तुम्हें आनंद न हुआ, और जब वे धाम सिधार गए तब भी तुम्हें कोई दुख नहीं हुआ। सचमुच तुम निष्ठुरी हो और निर्बलता एवं कमजोरी का परिचय देकर ऐसे अंधे और अभागे बन गए हो। अब मैं तुम्हें क्या कहूँ? जीव ने भी जागृत होकर तुम्हें रोका ही नहीं। अब तुम प्रियतम रूपी अखंड सच्ची निधि की और आओ जाओ। इससे पूर्व भी तुमने अवसर खो दिया था। प्रियतम धनी से मिलने का एक लाभ तो ले लो, दूसरा लाभ तो हर्ष पूर्वक अपने घर परम धाम में जागृत होकर प्राप्त करेंगे। हर्ष कहता है कि मैं भी क्या करूं, जब तक मेरा स्वामी जीव स्वयं अपने आप को संभाल नहीं पाता तो मुझसे क्या होगा। उसी प्रकार शोक कहता है कि जहाँ धनी नहीं कहते वहाँ पर मैं क्या करूं। हर्ष और शोक कहते हैं कि हम दोनों शक्तिशाली योद्धा है। अब हमारी युक्ति को तो देखो, आपने हमें धामधनी का परिचय करवाया, अब हम उन्हें सब प्रकार से ग्रहण करेंगे। हे मत्सर और अहम एवं अहंकार, तुम सब इतने अधिक शक्तिशाली होने पर भी बारंबार धिक्कार के पात्र हो, क्योंकि संसार की ओर दौड़ लगाकर तुमने हमारे और धनी जी के बीच अंतर बढ़ाकर वियोग करवा दिया। तुम तीनों योद्धाओं ने सम्मति साधकर विचारपूर्वक धामधनी के साथ सीधी बात क्यों नहीं की। जब जीवात्मा को जीवन के आधार धामधनी मिले तब तुम उत्साह में क्यों नहीं आए। जीव कहते हैं,
अब तुम तीनों मेरे पास आ जाओ, क्योंकि अब मुझे पुनः धाम धनी मिल गए हैं। तुम अपनी संपूर्ण शक्ति द्वारा माया के साथ कुशलता पूर्वक लड़ाई करो, ताकि मुझे संसार का तनिक भी रंग न लगे। अब ये तीनों कहते हैं कि हम तीनों योद्धा बलवान हैं। अब हम तीनों एक ही मार्ग पर चलेंगे। अब प्रियतम धनी बालाजी को ग्रहण कर जीवात्मा को उनके साथ मिला देंगे। हे सहज सरल स्वभाव, तुम अपने बलवान होने पर भी मुझसे कपट भाव से मिले। मानव जीवन का यह सुंदर अवसर मेरे हाथ से चला गया, किंतु तुम नहीं गए। हे मूर्ख सहज स्वभाव, तुम माया से मिलकर मेरे साथ झूठे कपटी बन गए। हे दुष्ट अभागी, तुम्हें धिक्कार है। इतनी सब बातें जानते हुए भी तुमसे कोई अच्छा काम न हो सका। हे सहज और स्वभाव, तुम दोनों की जोड़ी सम्मान है। मैं मेरे योद्धा हूँ, तुम सबल नवयुवक हो। जिसके पक्ष में जाकर खड़े रहोगे उसके जीत अवश्य होंगी। अब मैं तुम दोनों का क्रोधित होकर कहता हूँ, तुम सबल और जानकार बन जाओ। प्रियतम धनी के साथ प्रेम करो, अन्य किसी की आज्ञा मानने की आवश्यकता नहीं है। सहज और स्वभाव कहते हैं, हम दोनों बलवान हैं। कोई भी चाहे कितनी ही उपाय क्यों न करे, हम जिसको अच्छी तरह से पकड़े रहते हैं बाकी नहीं रहती है, अर्थात अवश्य पूरी होती है। मैं पुनः कहते हैं, हे जीव, तुम हमारी शक्ति को देखो। हम लोग चाह पूर्वक प्रियतम धनी को ग्रहण करेंगे और हृदय में ऐसे प्रेम रूपी गाढ़ लाल रंग लगा देंगे जो परोता रेशमी वस्त्र की भांति अमिट हो जाए। हे ममता, तुम माया के पक्ष में होकर अवश्य निर्बल हो गई है। हे दुष्ट पापिनी, तुझे बारंबार धिक्कार है। तूने मुझे बड़ी भारी हानि पहुंचाई है। हे ममता, अब तुम मेरे प्रियतम धनी की ओर आजा। संसार की अन्य विडंबनाओं को त्याग दे। संपूर्ण शक्ति के साथ तुम मेरे साथ रह जा, क्योंकि अब मुझे प्राणाधार धामधनी मिल गए हैं। ममता इसका प्रत्युत्तर देते हैं, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तुम उस अखंड निधि धामधनी को ग्रहण करो, मैं उनसे तुम्हें अलग होने नहीं दूंगी। अब तुम अपना कार्य पूर्ण रूपेण सफलतापूर्वक पार करो। हे कल्पना, अब मैं तुझे कहता हूँ, तू अकर्मण्य आलस्य बन गई है। इसलिए हे पापिन, तुझे बारंबार धिक्कार है। तूने हमें व्यर्थ ही बहुत परेशान किया। हे कल्पना, अब तू काम करने वाली स्फूर्ति बनकर मेरे साथ आजा और धामधनी की सेवा और प्रेम में लग जा। प्रियतम सदगुरु धनी मुझे प्राप्त हो चुके हैं। अब संसार में आई हुई मैं उनसे लाभ लूंगी। कल्पना कहती है कि यह काम तो मेरा है। अब मैं भांति भांति के विचार करूंगी। मेरे किसी भी अंग को सेवा कार्य में पीछे नहीं रखूंगी। उन सबको सेवा करने की सार वस्तु श्रेष्ठ प्रेम प्रकट कर दिखाऊंगी। हे बैर और राग, तुम दोनों अलग अलग स्वभाव के हो। तुम बलवान हो, एक दूसरे से बढ़कर श्रेष्ठ भी बन सकते हो। तुमने धामधनी के साथ बैरभाव रखा और जगत के साथ प्रेम किया। तुमने मेरे साथ अति दुष्टता पूर्वक तुमने मेरे साथ अति दुष्टता पूर्ण व्यवहार किया। अब मैं तुम्हें तलवार से आहत करूंगी। ऐसा सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ था, उस अवसर को भूलकर तुमने खो दिया। मेरा मुख्य आशय तुम पर टिका हुआ है। तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? अब तुम गर्जना करते हुए मेरे पास आओ, ताकि मैं प्रियतम धनी का यथार्थ लाभ ले सकूं। तुम दोनों योद्धा अलग अलग प्रकार से अपना पराक्रम बताओ। हे राग, अब तुम प्राणाधार धामधनी के प्रेम में लग जा। हे बैर, अब तुम अलग अलग कठिनाइयों को साथ लेकर संसार में जाकर बैठ जा। इसके प्रत्युत्तर में बैर कहता है, इसमें हमारा क्या दोष है, जबकि स्वामी जीव ही स्वयं
अपने घर का ख्याल न रखे, जब तक जीव निर्देश न करे, तब तक मैं क्षण क्षण में बदलने वाले इन गुणों को कैसे पकड़ूंगा। राग कहते हैं कि अब मैं प्राणधार धामधनी के साथ अच्छी तरह हिल मिल कर रहूंगा, जीव तथा धामधनी के बीच के अंतर को दूर करूंगा, तब तुम हमारे किए हुए कार्य की प्रशंसा करना। बैर कहता है, अब मेरी भी रीति देखो, मैं किस प्रकार संसार के प्रति कठोर बनता हूँ। यदि कोई भी गुण जीवात्मा को अपना बल दिखाएगा तो उसे तुरंत ही तलवार से काट डालूंगा। हे स्वाद, अब मैं तुझे धिक्कारता हूँ। मुझे अमृत रूपी प्रेम रस का पान कराने वाले प्रियतम धनी मिले थे। हे शौकीन स्वाद, ऐसे दिव्य स्वाद को छोड़कर तू संसार के पंच विषयों का भोगी बन गया। हे स्वाद, अब तू धनी के प्रेम रस का आस्वाद लेकर सुहागी बन जा और धामधनी की मधुरता को देख। यदि तू धनी के इस मधुर प्रेम का स्वाद सकेगा तो कभी भी दूसरे स्वाद की अपेक्षा नहीं रखेगा। स्वाद कहता है, जब मुझे धनी का सुख प्राप्त हुआ तब मोहजल का सुख अभक्ष्य बन गया, अर्थात मायावी सुखों की और अरुचि पैदा हो गई। मुझ में जो उल्टी बुद्धि और बल थे वे मिट गए। अब धामधनी के ओर से सीधे प्रेम का बल मिल गया। हे क्रोध, अब मैं तुझे गुणों को हटाने वाला कहूंगी। तुमने प्रियतम धनी के साथ ईर्ष्या की, मैंने तो तुझे भाग्यशाली सुख को भोगने वाला माना था, परंतु हृदय कमल पर विपरीत भाव डालने वाले हे क्रोध, तुझे बारंबार धिक्कार है। हे क्रोध, मैंने तो तुझे अपना ही माना था, परंतु तुझसे एक भी काम सिद्ध नहीं हुआ। हे दुष्ट अभागी, तुझे धिक्कार है, क्योंकि तेरे कारण मेरे हृदय की चाह पूरी नहीं हुई, मेरी मनोकामना अधूरी रह गई। हे क्रोध, अब तू हृदय कमल के उलटेपन को फेर दे, संसार की ओर से उल्टा कर धनी जी के सम्मुख कर दे। सचमुच तू ऐसा अकर्मण्य होकर क्यों बैठा है? कुछ ऐसा कर जिससे सब तेरी ही प्रशंसा करें। क्रोध कहता है कि मैं अधिक शक्तिशाली हूँ, परंतु अपने स्वामी जीवात्मा की अनुपस्थिति में मैं क्या करूं? अब यदि कोई भी गुण अवरोध डालकर जीव को दबाएगा तो मुझे इस प्रकार दोष कहना। कुमार के चक्की भांति घूमने वाले हे मन, अब मैं तुझे कह रही हूँ, तू जीव के सिर पर चढ़ बैठा है। हे दुर्भागी, तू अपने आप को पहचान नहीं सका और अकारण जीव को परेशान करके जन्म मरण के चक्र में डाल रहा है। हे अभागे, तू ऐसा अंधा क्यों बन गया है? तुम्हें सदगुरु धनी की इतनी पुकार सुनाई नहीं दी। हे दुष्टा, तुझे धिक्कार है। जब मुझे मेरे प्राणाधार सदगुरु धनी मिले तब भी तूने भवसागर के इस चक्र से अपना मुख नहीं मोड़ा। हे मन, तू समर्थ, शक्तिशाली और बलवान है। तेरे गति का मैं क्या वर्णन करूं? तू स्वतः प्रकाशमान परम धाम में ऊपर नीचे दसों दिशाओं में प्रत्येक स्थान पर दौड़ लगाता था। अब मुझे तुझसे बड़ा काम करवाना है। हे पड़ोसी मन, अब तेरी शक्ति देखूंगी। अब तू प्रेम धाम के 25 पक्ष में भ्रमण कर और आधे क्षण के लिए भी इस माया में भ्रमित मत हो। हे मन, संकल्प और विकल्प ये दोनों गुण तेरे में है। अब तू उनको सेवा की ओर उन्मुख बना। अपने में अति उत्साह भरकर धामधनी को मिलने की इच्छा कर। मन कहता है, मेरी बात बहुत बड़ी है और मैं सभी ढंग जानता हूँ। हाथी पर सवार महाबत की भांति मैं जीप पर सवार होकर उसे अपने बस में कर लेता हूँ। जब जीव स्वयं जागृत न हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? हे जीव, मेरा बल तभी काम करता है जब तुम जागृत होकर मेरे सामने बैठ जाओ। हे जीव, अब तुम मेरे रीति को देखो। मैं अपनी शक्ति का विस्तार करता हूँ। यदि तारतम ज्ञान रूपी अखंड धन लेकर तत्काल तुझे दे दूं तो मुझे सर्वगुणों का अग्रणी मानना।
यदि कोई मुझे प्रयोग करना जान ले तो मैं उसे तुरंत ही फल दिला सकता हूँ। मैं सेवा शुश्रूषा की अनेक रीति दिखलाता हूँ, जिससे धनी एक क्षण के लिए भी अलग न हो। हे भ्रम और भ्रांति, तुमने जैसा अदम काम किया है वैसा कोई नहीं करेगा। तारतम के प्रकाश में सदगुरु धनी की पहचान की, फिर भी तुम मेरे लिए अवरोधक बनकर खड़े हो गए। हे दुर्भागी, यदि तुम्हारा कोई आकार होता तो मैं तलवार से टुकड़े टुकड़े कर देती और उन टुकड़ों को महीन कर तलवार की उल्टी धार से बारीक चूर्ण बना देती। अब अच्छी तरह संसार में जाकर रहो और जैसा संसार है वैसा तुम भी बन जाओ। जिस तारतम के प्रकाश में मैंने प्रियतम को पहचाना है, अब मैं उसी प्रकाश से मूल तेज अपने परमात्मा को भी देख लूं। तब भ्रम भ्रांति कहते हैं, हे जीव सुनो, जरा भी संकोच किए बिना मुझे तलवार से काट डालो, परंतु तुम किस स्थान पर जाकर अज्ञान रूपी निद्रा में सो रहे हो? स्वयं को क्यों नहीं संभालते? जिसका स्वामी स्वयं अखंड धनी की प्राप्ति कर ले, वह सेवक आराम से कैसे सो सकेगा? तुम अपने आप की संभाल नहीं रखते और व्यर्थ ही हमें मार रहे हो, तिरस्कृत कर रहे हो। हे जीव, जब तुम स्वयं जागृत हो जाओगे तभी हम संसार की ओर जाएंगे। यह अच्छा हुआ कि तुम्हें सदगुरु धनी मिल गए। अब तुम अखंड ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। हे लज्जा, तू भी संसार के साथ मिल गई, इसलिए तुझे भी धिक्कार है। तदुपरांत तू परिवार के कर्म रूपी बंधन में बंध गए। धामधनी सदगुरु हमें बुलाने आए, परंतु उस समय तुझे शर्म नहीं आई। हे दुष्ट पापिनी, तुमने क्या किया? अब आगे मैं क्या करूंगी? धनी जी को क्या उत्तर दूंगी? धामधनी के समक्ष मेरा मस्तक कैसे उठ जाएगा? धामधनी के समक्ष मेरा मस्तक कैसे उठ पाएगा? तेरे कारण मुझे धनी के समक्ष शर्म का अनुभव नहीं होगा। हे शर्म, अब मैं तुझे कहती हूँ, तू प्रेम धाम के मूल संबंध को देख। पहले भी तुमने बड़ा मौका गवा दिया, अब तुम जागृत होने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। लज्जा कहती है, मैंने तो बड़ी भूल की, अब मैं प्रियतम धनी की ओर कैसे देख सकूंगी? जिस दुष्ट ने इससे पूर्व मुझे मार्ग भ्रष्ट किया, वो जलकर खाक हो गए। हे आशा, तुझे बारंबार धिक्कार है, क्योंकि तुम भी मोह सागर की बन गई। तूने धनी के साथ मिलाप तो किया, परंतु बाद में उन्हें भूलकर छोड़ दिया। इस प्रकार जीव की सफलता के आधार हस्तगत हुए थे। हे पापिनी, तू उन्हें खो गई थी। सदगुरु धनी द्वारा प्रदत्ता उस अखंड धन को छोड़कर इस संसार की सुखों जैसे तुच्छ वस्तुओं को तूने क्यों ग्रहण किया? इन सब का दोष जीव को लग गया है, क्योंकि तूने समय पर उपदेश नहीं दिया। अब धामधनी जी को प्राप्त करने की बड़ी आशा लेकर मैं विचार मग्न रहूंगी। किसी भी प्रकार की इच्छा की कमी नहीं रखूंगी। इसीलिए हे जीव, जीवन को सफल बनाने के लिए अपनी संभाल रखो। हे अकर्मण्य अचेत तन गुण, तेरा आगमन भी हो चुका है। तूने हमारी इच्छा पूरी होने नहीं दी। जीव को सदगुरु रूपी धन प्राप्त हुआ था। हे पापी, तूने उस सदगुरु से मुझे विमुख कर दिया। इस सदगुरु रूपी धन की मैं क्या बात करूं? हे अचेतन गुण, तुझे धिक्कार है। तेरे होते हुए तीव्रता की भावना पैदा नहीं हुई, अन्यथा मैं सदगुरु रूपी अखंड धन ग्रहण कर लेती। अचेतन गुण प्रत्युत्तर में कहता है, मैं तो मोहजल का हूँ, इसलिए सांसारिक माया की ओर ही जा रहा हूँ। तुम अपना धन प्राप्त कर लो, मैं तो तीव्रता की बाह पकड़ता हूँ। जीव कहता है, हे तीव्रता गुण, तुझे भी बारंबार धिक्कार है। मुझे धामधनी प्राप्त हुए थे, ऐसा सुंदर अवसर क्या कोई अपने हाथों से जाने देगा? हे पापी, तुमने मेरे साथ अति नीचता का व्यवहार किया। अब पुनः वही धनी मिलन का सुअवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए हे तीव्रता, अब तू सचेत हो जा। रात दिन जीव को धनी
की ओर दौड़ाती रहना, ताकि वह एक क्षण के लिए भी धनी जी को नहीं भूले। तीव्रता कहती है, यह सच है कि मैं बलवंती हूँ, जीव की सहायता के लिए मैं अपना बल लगा देती हूँ। तुम्हारे धनी जी को बस करने के लिए मैं जीव को सीधा कर देती हूँ। हे शील संतोष गुण, अब तुम मेरे पास आ जाओ। इस मोह सागर के चारों तरफ पाल बांट लो। तुम जैसा कहोगे सारे गुण वैसा ही करेंगे। अब अन्य कोई जंजाल नहीं है। शील गुण कहता है, हे संतोष तू सुन, हमें मोह सागर पर किनारा बनाना है, परंतु यह मोह जल का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि बड़े पर्वत को भी बहा सकता है। इसमें विभिन्न प्रकार के सत रज तम आदि के भंवर दिखाई देते हैं तथा काम क्रोध आदि लहरें भी मेरु पर्वत के समान ऊंची उठकर उछल रही है। इच्छा तृष्णा आदि बड़े बड़े मगरमच्छ तैर रहे हैं। ऐसे स्थान पर हमें बांध बनाना है। अब मजबूत नींव डालकर बांध बनाना है ताकि वह तनिक भी नहीं हिले। समय बीतने पर जब माया मोह रूपी जल अपने स्थान पर पहुंचकर रुक जाएगा तो हम सब की शोभा बढ़ेंगी। शील संतोष कहते हैं, हे जीव, अब हम इस बांध को मजबूती से बना रहे हैं। अब तुम तैयार हो जाओ। ऐसा अवसर फिर मिलने वाला नहीं है, इसीलिए परम धाम में तथा यहाँ सुंदर साथ के बीच शोभा प्राप्त कर लो। हे बलशाली जीव, अब तू अच्छी तरह से जागृत हो जा। तुझे कटु शब्द कैसे कहूँ? मैंने तुझे बहुत धिक्कारा है, फिर भी तू निश्चय ही अवसर चुक गया। हे जीव, मैंने तेरी कठिनाई को देखा, तू सचमुच अत्यंत कठोर है। धामधनी समझा कर थक गए, किंतु तू तनिक भी नहीं पिघला। हे जीव, मैंने तेरी कठिनाइयों को देखा, तू सचमुच अत्यंत कठोर है। धामधनी समझा कर थक गए, किंतु तू तनिक भी नहीं पिघला। चौपाई 115, प्रकरण 20, चौपाई 525। राजश्याम कहिए, राजश्याम कहिए, जय विधि रखे श्याम, ते विधि रहिए, जय विधि रखे श्याम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा कहिए, राज श्यामा कहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। राज श्यामा कहिए, राज श्यामा कहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। मलाई मेरा प्रियतम प्रभु मिल्नु भएको छ, त्यसकारण म उहाँको हरेक प्रकारले सेवा गर्नेछु। यस्तो विचार गर्दै थिएँ। मलाई मेरा प्रियतम प्रभु मिल्नु भएको छ, त्यसकारण म उहाँको हरेक प्रकारले सेवा गर्नेछु। यस्तो विचार गर्दै थिएँ। हे भाग्य, मलाई मेरा प्रियतम प्रभु मिल्नु भएको छ, त्यसकारण म उहाँको हरेक प्रकारले सेवा गर्नेछु। यस्तो विचार गर्दै थिएँ। हे भाग्यहीन धैर्य, यस्तो मौकामा आएर त किन खडा भइस्? मलाई मेरा प्रियतम प्रभु मिल्नु भएको छ, त्यसकारण म उहाँको हरेक प्रकारले सेवा गर्नेछु। यस्तो विचार गर्दै थिएँ। हे भाग्यहीन धैर्य, यस्तो मौकामा आएर त किन खडा भइस्? हे पापी, त्यसकारण
तँलाई पनि बारम्बार धिक्कार छ। प्रभुरूपी अखण्ड धन पाएपछि कसरी शान्त भएर बस्ने? सबै अङ्गहरूलाई काममा लगाएर दौडँदै म सेवा गर्नेछु र दुनियाँतर्फ धैर्य धारण गर्नेछु। धैर्य भन्दछ, म तबसम्म थिएँ जबसम्म जीव अज्ञान रूपी निद्राको जोर थियो। अब म संसारतिरबाट मुख मोड्दछु। अब तिमी आफ्ना प्रभुका साथ आनन्द गर। जीव लोभ लालच आदि गुणसँग बन्दछ। तिमीहरू दुष्ट र अज्ञानी हौ, त्यसकारण तिमीहरूलाई धिक्कार छ। अखण्ड धनरूपी प्रभु जाँदा तिमीहरूले लोभ गरेनौ, नत्र भने तिम्रा सबै काम सिद्ध हुने थिए। हे लोभ लालच, अब तिमी दुवै माया नजिक नजाओ। मेरा प्रियतम प्रभुलाई प्राप्त गर्नका लागि अब तिमीहरू आओ, जसबाट प्रभु नजिक जानका लागि म दिनरात दौडने छु। लोभ र लालच भन्दछन्, यसमा हाम्रो के दोष? जबसम्म जीवलाई केही थाहा हुँदैन तबसम्म हाम्रो केही जोर चल्दैन। अब तपाईले जे भन्नुभयो हेर्नुहोस्, हामी प्रभुलाई कसरी प्राप्त गर्नेछौँ। हे अभागी तृष्णा, तँलाई धिक्कार छ। तँ पनि निश्चय नै निर्बल भइस्। अरू सबै गुण सन्तुष्ट हुन्छन्, तर तँमा भोगको भण्डार नै भरिएको छ। हे तृष्णा, अब म तँलाई कसरी निकालौँ? तँबाट ठुलो काम गराउनु छ। अब तँ मलाई प्रियतम मिलन प्रति सहायक हो, जसबाट म प्रभुलाई आफ्नो बसमा गर्न सकूँ। तृष्णा उत्तर दिन्छ, जीवले जुन प्रभुलाई देखाएको छ म उहाँलाई कुनै पनि प्रकारले छोड्दिन। हे जीव, अब तिमी गएर अन्य गुण अङ्ग र इन्द्रियलाई जतन गर। म निश्चित रूपले प्रभुलाई कहिल्यै छोड्ने छैन। जीव अब मोहसँग भन्दछ, हे मोह, मेरो यो कुरालाई ध्यानपूर्वक सुन। मलाई मेरा प्राणाधार प्रभु मिल्नु भएको थियो, तर हे पापी दुष्टमती मोह, तँलाई धिक्कार छ। किनभने यो कुरा जानेर पनि तैँले संसारको माया छोडिनस्। हे मोह, अब त प्रभुमा आएर स्थिर हो र मायाबाट अलग हो। मेरा हातबाट फेरि यो अवसर आएको छ। मेरा हातमा फेरि यो अवसर आएको छ। अब मेरो मोह कति महान योद्धा छ, त्यो मलाई हेर्नु छ। तब मोह भन्दछ, मेरो कुरा त ठुलो छ, अर्थात् म ठुलो हुँ, मलाई सबैले जान्दछन्। म जुन स्थानमा गएर बस्दछु त्यहाँ मलाई कसैले हटाउन सक्दैन। हे जीव, तिमीले मलाई प्रभुरूपी अखण्ड धन देखायौ, त्यसलाई अन्धाले जस्तै गरी समात्छु। मेरो यही एउटा मात्र प्रणाली छ, अरू कुनै प्रणाली अथवा तरिका म जान्दिन। हे हर्ष शोक, तिमी दुवै मायाका भयौ। हे भाग्यहीन मूर्ख, तिमी दुवैलाई धिक्कार छ। प्रभु पाउँदा पनि तिमीहरूलाई आनन्द आएन र अब उहाँ धाम जानुभयो तब पनि तिमीहरूलाई कुनै दुःख भएन। साँच्चीकै तिमीहरू निष्ठुर हौ। निर्बलता तथा कमजोरीको परिचय दिएर यस्ता अन्धा र अभागी बन्यौ। अब म तिमीहरूलाई के भनौँ? जीवले पनि जागृत भएर तिमीहरूलाई रोकेन। अब तिमीहरू प्रियतम रूपी अखण्ड धनतिर आओ। यो भन्दा पहिले पनि तिमीहरूले मौका चुकायौ। प्रियतम प्रभुसँग मिल्ने एउटा लाभ त ल्याओ, अर्को लाभ त हर्षपूर्वक आफ्नो घर परमधाममा जागृत भएर प्राप्त गर्नेछौ। हर्ष भन्दछ, म पनि के गरौँ? जबसम्म मेरा मालिक जीव स्वयंलाई जतन गर्न सक्दैनन् भने मबाट के हुन सक्दछ? यसै गरी शोक भन्दछ, जहाँ मालिकले केही भन्दैनन् त्यहाँ म के गर्न सक्दछु? हर्ष र शोक भन्दछन्, हामी दुवै शक्तिशाली योद्धा हौँ। अब हाम्रो युक्ति त हेर। हजुरले हामीलाई प्रभु परिचय गराउनु भयो। अब हामी उहाँलाई सबै प्रकारले ग्रहण गर्नेछौँ। हे मद मत्सर र अहमेव अहङ्कार, तिमीहरू सबै यति धेरै शक्तिशाली भएर पनि बारम्बार धिक्कारका पात्र भएका छौ। किनभने संसारतिर दौड लगाएर तिमीहरूले हाम्रो र प्रभुका बीच अन्तर बढाएर वियोग गरायौ। जब प्रभुलाई जीवले प्राप्त गरेको थियो, तिमीहरू तिनै योद्धा एक भएर किन सिधा कुरा गरेनौ? त्यसबेला किन उत्साहित भएनौ?
अब तिमीहरू म समक्ष आओ, किनभने मलाई फेरि मेरा आधार मिल्नु भएको छ। तिमीहरू आफ्नो बुद्धि लगाएर मायासँग युद्ध गर, जसबाट संसारका रङ्गको एक थोपा पनि तिमीहरूलाई लाग्न नसकोस्। अब यी तिनै भन्दछन्, हामी तीनजना शक्तिशाली छौं र एकै बाटो हिँड्नेछौँ, प्रभुलाई ग्रहण गरेर जीवलाई पनि साथै गरिदिन्छौँ। हे सहज र स्वभाव, तिमीहरू यति बलशाली भएर पनि मसँग कपट भावले मिल्यौ। मनुष्य तनको यो सुन्दर मौका मेरो हातबाट गयो, तर तिमीहरू आएनौ। हे मूर्ख सहज स्वभाव, तिमी मायासँग मिलेर मसँग झुठा भयौ। हे दुष्ट अभागी, तिमीहरूलाई धिक्कार छ। यी सबै कुरा जानेर पनि तिमीहरूबाट कुनै राम्रो काम हुन सकेन। हे सहज र स्वभाव, तिमी दुवैको जोडी समान छ। हे मेरा योद्धाहरू, तिमीहरू सबल नवजवान छौ। जसको पक्षमा गएर उभिनेछौ त्यसको जित हुनेछ। अब तिमी दुवैलाई क्रोधित भएर भन्दछु, तिमी सबल र जानकार बन, प्रियतम प्रभुका साथ प्रेम गर, अरू कसैको आज्ञा मान्नु आवश्यकता छैन। सहज र स्वभाव भन्दछन्, हामी दुवै बलवान छौं, कसैले किन धेरै उपाय नगरोस्। हामी जसलाई राम्ररी सम्हाल्दछौं त्यहाँ कुनै कुरा बाँकी रहँदैन। ती फेरि भन्दछन्, हे जीव, तिमी हाम्रो शक्ति हेर, हामी चाहनापूर्वक प्रियतम प्रभुलाई ग्रहण गर्दछौं र हृदयमा यस्तो प्रेम रूपी गाढा रातो रङ लगाइदिन्छौं जुन रेशमी कपडामा जस्तै कहिले मेटिँदैन। हे ममता, त मायाको पक्ष लिएर अवश्य निर्बल भइस्। हे दुष्ट पापी, तँलाई बारम्बार धिक्कार छ, तैँले मलाई ठूलो हानि पुर्याइस्। हे ममता, अब त मेरा प्रियतम प्रभुतिर आइज, संसारका अरू विडम्बनालाई छोड, सम्पूर्ण बलका साथ मसँग बस, किनभने अब मलाई प्रभु मिल्नु भएको छ। ममता यसरी उत्तर दिन्छे, म तिमीसँगै छु, तिमी त्यो अखण्ड धनलाई ग्रहण गर, म तिमीलाई त्यसबाट अलग हुन दिन्न। अब तिमी आफ्नो कार्य पूर्ण रूपले सिद्ध गर। हे कल्पना, अब म तँलाई भन्दछु, त अकर्मण्य अल्सी भइस्। त्यसकारण हे पापी, तँलाई बारम्बार धिक्कार छ, तैँले व्यर्थमा हामीलाई अति हैरानी गराइस्। हे कल्पना, अब त काम गर्ने भएर मसँग आइज र प्रभुको सेवा र प्रेममा लाग। प्रियतम प्रभु मलाई मिलिसक्नु भएको छ। अब संसारमा आए कि म उहाँबाट लाभ लिनेछु। कल्पना भन्दछे, यो काम त मेरो हो, अब अनेक प्रकारको विचार गर्नेछु, मेरो कुनै पनि अङ्ग सेवा कार्यमा पछि हट्ने छैन। ती सबैलाई सेवा र सेवाको सार वस्तु प्रत्यक्ष देखाउँछु। हे वैर र राग, तिमी दुवै अलग अलग स्वभावका छौ, तिमीहरू बलवान छौ, एक अर्काभन्दा विशेष श्रेष्ठ हुन पनि सक्दछौ। तिमीहरूले प्रभुका साथ वैरभाव राख्यौ र संसारतिर राग राख्यौ। तिमीहरूले मसँग अति दुष्टतापूर्ण व्यवहार गर्यौ। अब म तिमीहरूलाई तरवारले हान्नेछु। यस्तो मौका मलाई मिलेको थियो, त्यस अवसरलाई बोलाएर मलाई चुक्न दियौ। मेरो मुख्य बल तिमीहरूमाथि अडेको छ, तिमीहरूले मसँग यस्तो व्यवहार किन गर्यौ। अब तिमीहरू गर्जना गर्दै मसँग आओ, जसबाट म प्रियतम प्रभुको यथार्थ लाभ लिन सकूं। तिमी दुवै योद्धा अलग अलग किसिमले आफ्नो पराक्रम देखाओ। हे राग, अब त प्राणधार प्रभुको प्रेममा लाग। हे वैर, अब त अलग अलग कठिनाई लिएर संसारमा गएर बस। यसको उत्तरमा वैर बन्दछ, यसमा हाम्रो के दोष। जब मालिक नै स्वयं आफ्नो घरको ख्याल गर्दैन, जबसम्म जीव निर्देशन दिँदैन, तबसम्म म क्षण क्षणमा परिवर्तनशील गुणलाई कसरी ग्रहण गरौं। राग भन्दछ, अब म प्राणधार प्रभुका साथ राम्ररी मिलेर बस्नेछु, जीव र प्रभुका बीचको अन्तरलाई हटाइदिनेछु। तब तिमी हाम्रो कार्यको प्रशंसा गर्नु। वैर भन्दछ, अब मेरो रीति हेर, म कसरी संसारप्रति कठोर हुन्छु। यदि कुनै पनि गुण जीवात्मा प्रति आफ्नो बल देखाउँछ भने त्यसलाई तुरन्त तरवारले काट्नेछु। हे स्वार्थ, अब म तँलाई धिक्कार्छु।
मलाई अमृत रूपी प्रेम रस पान गराउने प्रियतम प्रभु मिल्नु भएको थियो। हे शौखिन स्वाद, यस्ता दिव्य स्वादलाई छोडेर त संसारका 5 विषयको भोगी भनिस्। हे स्वाद, अब त प्रभुको प्रेम रसको स्वाद लिएर सुहागी बन र प्रभुको मधुरतालाई हेर। यदि तैँले प्रभुको यो मधुर प्रेमको स्वाद चाखिस् भने कहिले पनि अर्को स्वादको आशा गर्ने छैनस्। स्वाद भन्दछ, जब मलाई प्रभुको सुख प्राप्त भयो तब मोहजलको सुख अवश्य लाग्यो। ममा जुन उल्टो बुद्धि र बल थिए त्यो सबै मेटिए। अब प्रभुतिरबाट सिधा प्रेमको बल पाएँ। हे क्रोध, अब म तँलाई गुण हटाउने कुरा गर्दछु। तैँले प्रियतम प्रभुका साथ ईर्षा गरिस्। मैले त तँलाई भाग्यशाली मानेको थिएँ, तर हृदय कमलमाथि विपरीत भाव उब्जाउने हे क्रोध, तँलाई बारम्बार धिक्कार छ। हे क्रोध, मैले तँलाई आफ्नै मानेको थिएँ, तर तँबाट एउटा पनि काम सिद्ध भएन। हे दुष्ट अभागी, तँलाई धिक्कार छ, किनभने तेरै कारण मेरो हृदयको कामना पूरा भएन। हे क्रोध, अब त हृदय कमलको उल्टो चक्रलाई फेर संसारतिरबाट उल्टो गराएर प्रभु सम्मुख गरिदे। साँच्चै के त यस्तो अल्छी भएर किन बसिस्? केही यस्तो काम गर जसबाट सबैले तेरो प्रशंसा गरून्। क्रोध भन्दछ, म धेरै भाग्यशाली छु, तर आफ्ना मालिक जीवात्माको अनुपस्थितिमा म के गर्न सक्दछु? अब यदि कुनै पनि गुण बाधा बनेर जीवलाई सतायो भने मलाई यसरी दोषी मान्नु। कुमालेको चक्र चाहिँ घुम्ने हे मन, अब म तँलाई भन्दैछु, त जीवको टाउकोमा बसेको छस्। हे दुर्भागी, तैँले स्वयंलाई चिन्न सकिनस् र अकारण जीवलाई हैरान गरेर जन्म मरणको चक्करमा हाल्दैछस्। हे अभागी, त यस्तो अन्धो किन भइस्? तैँले सद्गुरुको यति पुकार पनि सुनिनस्। हे दुष्ट, तँलाई धिक्कार छ। जब मलाई मेरा प्राणदार सद्गुरु मिल्नु भएको थियो तब पनि तैँले भव सागरको यस चक्रबाट आफ्नो मुख फेरिनस्। हे मन, त समर्थ शक्तिशाली र बलवान छस्। तेरो गतिको म के वर्णन गरौँ? त स्वतः प्रकाशवान परमधामको 10 दिशाको प्रत्येक स्थानमा दौडिन्थिस्। अब मलाई तँसँग ठुलो काम गराउनु छ। हे छिमेकी, अब तेरो शक्ति हेर्दछु। अब त परमधामका 25 पक्षमा घुम र आधा क्षणका लागि पनि यस मायामा भ्रमित नहो। हे मन, संकल्प र विकल्प यी दुवै गुण तँमा छन्। अब त तिनलाई प्रभु सेवातिर फर्का। आफूमा अति उत्साह लिएर प्रभुसँग मिल्ने इच्छा गर। मन भन्दछ, मेरो कुरा अति महान छ र म सबै ढङ्ग जान्दछु। हात्तीमा सवार माउतेको जस्तै म जीवमाथि सवार भएर त्यसलाई वशमा गर्दछु। जब जीव स्वयं जागृत नभएपछि मैले के गर्न सक्छु? हे जीव, मेरो बलले तब काम गर्दछ जब तिमी जागृत भएर मेरा अगाडि बस्दछौ। हे जीव, अब तिमी मेरो रीति हेर। म आफ्नो शक्तिको विस्तार गर्दछु। यदि तारतम ज्ञान रूपी अखण्ड धन लिएर तिमीलाई दिए भने मलाई सर्वगुणमा अगाडि मान्नु। यदि कसैले मलाई प्रयोग गर्न जान्दछ भने म त्यसलाई तुरन्तै फल दिलाउन सक्दछु। म सेवाको अनेक रीति देखाउँछु जसबाट प्रभु एक क्षणका लागि पनि अलग नहुन्। हे भ्रम र भ्रान्ति, तिमीहरूले भ्रमित गराएर नराम्रो गर्यौ। यस्तो त अरू कसैले पनि गर्दैन। तारतमको प्रकाशमा सद्गुरुको परिचय भयो। फेरि पनि त मेरा लागि बाधक बनेर किन खडा भइस्? हे दुर्भागी, यदि तेरो कुनै आकार भए म तरबारले टुक्रा टुक्रा पारिदिन्थे र ती टुक्रालाई मसिनो बनाएर तरबारको उल्टो धारले ससाना कण बनाइदिन्थे। अब राम्ररी संसारमा गएर बस। जस्तो संसार छ त्यस्तै त पनि बन। जसरी तारतमको प्रकाशमा मैले प्रभुलाई चिने, अब म त्यसै प्रकाशको मूल तेजलाई हेर्दछु। तब भ्रम र भ्रान्ति भन्दछन्, हे जीव सुना, अलिकति पनि संकोच नगरी हामीलाई तरवारले काट। तर तिमी कुन स्थानमा गएर अज्ञान रूपी निद्रामा सुतिरहेका छौ? स्वयंको जतन किन गर्दैनौ? जसको मालिक स्वयं अखण्ड प्रभुको
प्राप्ति गर्दछ त्यहाँ त्यो सेवक आरामले कसरी सुत्न सक्दछ। तिमी स्वयंलाई जतन गरेर राख्न सक्दैनौ र व्यर्थ नै हामीलाई ताडित गरिरहेका छौ। हे जीव, जब तिमी स्वयं जागृत हुनेछौ तब हामी संसारतिर लाग्नेछौ। यो राम्रो भयो, तिमीलाई सद्गुरु प्रभु मिल्नुभयो। अब तिमी अखण्ड ज्ञानको प्रकाश फैलाओ। हे लज्जा, त पनि संसारसँग मिलिस, त्यसकारण तँलाई पनि धिक्कार छ। त्यसपछि त परिवारको कर्मरूपी बन्धनमा बाँधिस। सद्गुरु हामीलाई बोलाउनका लागि आउनुभयो, तर त्यस बेला तँलाई लाज लागेन। हे दुष्ट पापी, तैँले के गरिस्? अब अगाडि म के गरौँ? प्रभु समक्ष मेरो शिर कसरी उठ्नेछ? के तेरा कारण मलाई प्रभुका अगाडि लाजको अनुभव हुने छैन? हे लाज, अब म तँलाई भन्दछु, त परमधामको मूल सम्बन्धलाई हेर। पहिले पनि तैँले ठुलो मौका गुमाइस्, अब फेरि जागृत हुने मौका आएको छ। लज्जा भन्दछ, मैले त ठुलो भुल गरेँ। अब म प्रियतम प्रभुतिर कसरी हेर्न सकौँला, जुन दुष्टले यो भन्दा पहिले मलाई पथभ्रष्ट गर्यो, त्यो बलेर खरानी होस्। हे आशा, तँलाई बारम्बार धिक्कार छ, किनभने त पनि मोह सागरको भइस्। तैँले प्रभुका साथ मिलाप त गरिस्, तर फेरि उहाँलाई भुलेर छोडिदिइस्। यसरी जीवलाई सफलता प्राप्त भएको थियो। हे पापी, त्यसबाट किन चुकिस्? सद्गुरु प्रदत्त त्यस अखण्ड धन छोडेर यी सांसारिक आनन्द जस्तो तुच्छ वस्तुलाई किन ग्रहण गरिस्? यी सबैको दोष जीवलाई लाग्यो, किनभने तैँले उपदेश दिइनस्। अब प्रभुलाई प्राप्त गर्ने ठुलो आशा लिएर म विचार मग्न रहनेछु, कुनै पनि प्रकारको कामना गर्ने छैन। त्यसकारण हे जीव, जीवनलाई सफल बनाउनका लागि आफ्नो जतन गर। हे अल्छी अचेतन गुण, तेरो आगमन पनि भइसक्यो, तैँले मेरो कामना पुरा हुन दिइनस्। जीवलाई सद्गुरु रूपी धन प्राप्त भएको थियो। हे पापी, तैँले ती सद्गुरुसँग मलाई विमुख गराइस्। यस सद्गुरु रूपी धनको म के कुरा गरौँ? हे अचेतन गुण, तँलाई धिक्कार छ। त हुँदा हुँदै तीव्रताको भावना आएन, नत्र भने म सद्गुरु रूपी अखण्ड धन ग्रहण गर्ने थिएँ। अचेतन गुण उत्तर दिन्छ, म त मोह जलको हुँ, त्यसकारण सांसारिक मायातिर नै जाँदैछु। तिमी आफ्नो धन प्राप्त गर, म त तीव्रताको हात समात्छु। जीव भन्दछ, हे तीव्रता गुण, तँलाई पनि बारम्बार धिक्कार छ। मलाई प्रभु प्राप्त हुनुभएको थियो, यस्तो राम्रो मौका कसैले हातबाट जान दिन्छ? हे पापी, तैँले मसँग अति निचताका साथ व्यवहार गरिस्। अब फेरि त्यही मौका आएको छ। त्यसकारण हे तीव्रता, अब त सचेत हो। रात दिन जीवलाई प्रभुतिर दौडा, जसबाट एक क्षणका लागि पनि प्रभुलाई नभुलियोस्। तीव्रता भन्दछ, यो साँचो हो, म बलवान छु। जीवको सहायताका लागि आफ्नो बल लगाउँछु। तिम्रा प्रभुलाई बस गर्नका लागि म जीवलाई सिधा गरिदिन्छु। हे शील सन्तोष गुण, अब तिमीहरू मसँग आओ। यस मोह सागरका चारैतिर पाल बाँध। तिमीहरू जस्तो भन्दछौ सबै गुण त्यस्तै गर्नेछन्। अब अरू कुनै जन्जाल छैन। शील गुण भन्दछ, हे सन्तोष त सुन। हे सन्तोष त सुन, हामीले मोह सागरमा पाल बाँध्नु छ, तर यो मोह जलको प्रभाव यति शक्तिशाली छ, त्यसले ठुला ठुला पहाडलाई पनि बगाउन सक्दछ। यसमा विभिन्न प्रकारका भुमरी देखिन्छ। लहर पनि पर्वत समान अग्ला अग्ला छचल्किरहेका छन्। ठुला ठुला गोही माथि पौडी खेलिरहेका छन्। यस्तो स्थानमा हामीले बाँध बनाउनु छ। अब बलियो जग हालेर बाँध बनाउनु छ, जसबाट त्यो अलिकति पनि नहलियोस्। जब माया मोह रूपी पानी आफ्नो स्थानमा पुगेर रोकिनेछ र त्यसबाट सबैको शोभा बढ्नेछ। शील सन्तोष भन्दछन्, हे जीव, अब हामी यस बाँधलाई बलियो गरेर बनाइरहेका छौँ। अब तिमी तयार हो। यस्तो मौका फेरि मिल्ने छैन। त्यसकारण परमधाम तथा यहाँ सुन्दर साथका बीच शोभा प्राप्त गर। हे बलशाली जीव, अब त राम्ररी जागृत हो। तँलाई कसरी कटु शब्द भनौँ? मैले तँलाई अति धिक्कारेँ, फेरि पनि त निश्चय नै चुकिस्। हे जीव, मैले तेरो कठिनाइ हेरेँ,
त साँच्चीकै अत्यन्त कठोर छस्। प्रभुले सम्झाइ थाक्नुभयो, तर त अलिकति पनि पग्लिनस्। हे जीव, मैले तेरो कठिनाइ हेरेँ, त साँच्चीकै अत्यन्त कठोर छस्। प्रभुले सम्झाइ थाक्नुभयो, तर त अलिकति पनि पग्लिनस्। चौपाई 115, प्रकरण 20, चौपाई 525। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर प्रकाश गुजराती 21औं प्रकरणको जी प्रबोध। सावल जीव कौ वृत्तान्त तुने एक दौं दृष्टान्त। ते तू सावल एके चित तुने कहूँ छु करी निहित। परिछते यम पूछ्यो प्रश्न सुखजी मुने को वचन। 14 भवन माय मोतो जेह मुझने उत्तर आपो तेह। त्यारे सुखजी यम बोल्या प्रमाण ग्रहे जे वचन उत्तम करी जान। 14 भवनमा मोतो तेह मोती मतन धनी छे जेह। बलि परिछते पूछु येम जे मोती मत ते जानिए केम। मोती मतन कौं विचार ग्रहे जे परिछत जानी सार। मोती मत ते कहिए येम जेहना जीवने बलभ श्री कृष्ण। मतनी मत ताये छे सार बलि बीजी मतनु कौं विचार। यह बिना जे बीजी मत जे तू सर्वे जाने कुमत। कुमत ते केही कहे बाए निचाराती निची थाए। ये बडो त्यानो स्यो वरतान्त त्यानो काहीँक कौं दृष्टान्त। सावल परिछ त कौं बलि तेह एक मोती मतनु धनी छे जेह। मोती मत बलभ धनी करे ते भव सागर किन माहे तरे। तेने आडो न आवे संसार तेने चल सुख पामे करार। ओली कुमत कहिए तेने सु थाए अन्धकूप पड्यो पचे माए। ए सुख जिन कया वचन जीव भीमासी जुए जोपे मन। भीमासन नै ये बात तारो निर्माण बाध्यो श्वास श्वास। त्यान पन नति विश्वास जे केतला तू लई सये श्वास। एक खिनमा कई बार आवे जाए त्यारे का तू बिचु कपासिया थाए। ते माते सुन जे रे जीव सही मोती मत में तुझने कही। जे जोगवाई छे तारे हाथ ते आनी जीव्याए केही कहूँ बात। आतला दिवस ते जानु नव जान मूर्ख करे ते म किदु अजान। हवे ये वचन विचार जे रही सुखजी पाए साख पुरा भी सही। हवे एक वचन कहूँ सुन जे जीव सही बालाजी न चरण तू ग्रहे जे रही। सुन जे बलिदानी न वचन बानी कहे ते ग्रहे जे मन। रखे पानी बल बिलो थाए अब नहीं लाभे रे दाए। भरम बाजवा कया वचन मोती मत ग्रहे जे म थाए धन धन। हवे ओलख जे जोपे करी भरम भ्रांत मुख पर हरि। मुख माए ती वचन कया तो सु जो हजी न छेक निकलियो तू। आगे किव माडी छे अनेक ते पन काहीक किंदे विषेक। पन साँचो तो जो समझे जीव तो बानी बले मुख दिकई पिव। ए बानी नदी काई किओ ना जेम मारा जीवने खिजवा कया में येम। जीव छे मारो अति सुजान ते धनी न चरण नई मुखे निर्वाण। पन साँचो तो जो करे प्रकाश जो त जई लागी आकाश। आनी जोगवाई तो येम थाए 14 भवनमा जो त न समाए। एम अमे न करूं तो बीजो कोण करे धनी अमारे काजे बीजी दान देह धरे। एनी केमे नव थाए शरम एनी द्रष्टे केम न थाए नरम। जीव छे मारो खरी बस्ता
ते कानव करे अझ बालो अत श्री सुन्दर बाई ने चरण जथकी बलि मोसु गुण किदा बाई गुण हुन्ती मारे माथे दया रतन बाई नि गनी एनी कृपाए जोपे ओलकी छ धनी एनी दया जोत एम करिसा चरण धनी न चित्तमा धरिसा इन्द्रावती चरण लागे आधार सुफल फेर करूँ आभार सुफल फेरौँ करूँ आभार एनी दया ये जोत एम करिसा धनी चरण धनी न चित्तमा धरिसा श्री इन्द्रावती चरण लागे आधार सुफल फेरो करूँ आभार सुफल फेरो करूँ आभार सुफल फेरो करूँ आभार चौपाई 22 प्रकरण 21 चौपाई 547 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश गुजराती 21वां प्रकरण जीव प्रबोध को हिंदी सरलार्थ। हे जीवात्मा सुन, अब तुझे एक दृष्टांत देकर वृतांत सुनाती हूँ। एकाग्र चित्त होकर सुन, यह सब तुझे प्रेम पूर्वक तेरी भलाई के लिए कहती हूँ। राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया था, हे सुखदेव जी, 14 लोकों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तब सुखदेव मुनि ने उन्हें कहा कि मेरे उत्तम वचनों को सुनकर ग्रहण करो। 14 लोकों में सर्वश्रेष्ठ वो है जो महान बुद्धि का धनी है। पुनः राजा परीक्षित ने पूछा, महान बुद्धि वाले को कैसे जाना जा सकता है? सुखदेव जी ने प्रत्युत्तर में कहा कि मैं तुझे महान बुद्धि धारक की पहचान दे रहा हूँ। हे परीक्षित, उसे सार तत्व समझकर ग्रहण करो। महान बुद्धि उसकी कही जाती है जिस जीवों को अक्षरातीत श्री कृष्ण प्रिय लगे। बुद्धियों में भी उत्तम बुद्धि का सार यही है। अब अन्य बुद्धियों का तत्व प्रकट कर रहा हूँ। अक्षरातीत श्री कृष्ण में प्रेम रखने वाले बुद्धि के अतिरिक्त जितनी भी अन्य मायावी बुद्धियाँ हैं, उन्हें तुम कुबुद्धि समझना। कुबुद्धि उसे कहा जाता है जो सर्वाधिक नीच और हल्के विचार वाली हो। इसका इतना बड़ा विवरण क्या है, इस संदर्भ में दृष्टांत देकर कह रहा हूँ। हे परीक्षित, जो बड़ी मत का धनी है उसकी बात सुनो। विशाल बुद्धि प्राण बल्लभ श्री कृष्ण परमात्मा को सर्वस्व मानती हैं। ऐसे बुद्धि वाले लोग आधे क्षण में ही भवसागर पार हो जाते हैं। उनके लिए यह मायावी संसार बाधक नहीं बनता। वे निश्चित रूप से अखंड सुख प्राप्त करते हैं। जिसे कुमति कहा है उसका क्या होगा? वो तो अंधकूप अथवा जन्म मरण के चक्र में गिरकर वहीं पड़ा रहेगा। हे जीव, ये वचन भी सुखदेव मुनि के हैं जिन्हें विचार पूर्वक मन लगाकर सुनना चाहिए। उपर्युक्त कथन मात्र विचार करने के लिए ही नहीं है, उस पर तुरंत ही अमल होना चाहिए। इसीलिए हे जीव, तेरे शरीर का निर्माण तो श्वासोच्छ्वास के साथ बंधा हुआ है। उन श्वासों का भी भरोसा नहीं है। तू ऐसे कितने श्वास ले पाएगा? एक क्षण में श्वासों का कई बार आवागमन होता है। उसका सदुपयोग न किया जाए तो वे व्यर्थ ही चले जाएंगे। जिस प्रकार पीजी हुई रुई को काटा न जाया तो पुनः रुई ही हो जाएंगी, इसी तरह यह मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों में घूमकर प्राप्त हुआ है। इसके एक एक श्वास का सदुपयोग करके यदि भजन भक्ति न करे तो पुनः 84 के चक्र में घूमना पड़ेगा। इसीलिए हे जीव, तू प्रेम पूर्वक मेरी बात सुन। मैंने विशाल बुद्धि का विवेचन तुझे समझाया है। यह मनुष्य जीवन तुझे प्राप्त हुआ है, इसकी प्रशंसा इस जीवा से कैसे करूं? इतने दिनों तक इसका महत्व तुझे समझाया है। इसको जानने पर भी तू अनजान बनकर मूर्ख की भांति कार्य कर रहा है। हे जीवात्मा, तू अब इन वचनों पर ठीक से विचार कर। सुखदेव जी इसके साथी बने हैं। अब अंत में
मैं एक बात कहती हूँ, उसे सुन। प्रियतम धनी श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़े रहना। तू पुनः धाम धनी सदगुरु के वचन सुन और उनकी उपदेशमयी वाणी एकाग्र चित्त होकर ग्रहण कर। एक क्षण के लिए भी तू धनी जी से अलग नहीं रहना, क्योंकि ऐसा समय तुझे पुनः प्राप्त नहीं होगा। हे जीव, तेरे भ्रम को तोड़ने के लिए मैंने ये वचन कहे हैं। तू विशाल बुद्धि को धारण कर धन्य बन। अब अच्छी तरह पहचान कर भ्रम और भ्रांति को छोड़ दे। जब तक अंतरात्मा में ये वचन नहीं पहुँचे तब तक केवल सुख के कहने मात्र से क्या होगा। वैसे तो इससे पूर्व भक्तजनों ने भी परमात्मा और विशाल बुद्धि के विषय में अनेक कविताएं लिखी है, परंतु इंद्रावती द्वारा निर्मित कृतियां अक्षरातीत का वर्णन होने से अन्य से विशिष्ट हैं। परंतु धामधनी के श्रीमुख से विनिश्रित इस वाणी की सार्थकता तो तभी मानी जाएंगी जब जीव उसे समझकर ग्रहण करे। यह वाणी किसी कवि की कल्पना की भांति नहीं है। मेरे जीव को उत्तेजित करने के लिए मैंने इस प्रकार कहा है। मेरा जीव अत्यंत चतुर और प्रवीण है। निश्चित रूप से वह धनी जी के चरणों को कभी नहीं छोड़ेगा, किंतु वह सत्य तभी होगा जब धनी जी के वचनों को प्रकाशित करे, ताकि इस ज्ञान की अखंड ज्योति आकाश तक पहुंचकर उससे भी आगे जाए। इस शरीर के द्वारा ज्ञान की ऐसी ज्योति प्रकट हुई कि उसका प्रकाश 14 लोकों में भी नहीं समा सकता। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा। धामधनी सदगुरु ने हमारे लिए दूसरी बार देह धारण किया है। इंद्रावती कहती हैं कि इस जीव में किसी भी प्रकार की लज्जा नहीं है। वह सदगुरु के दर्शन मात्र से विनम्र क्यों नहीं हो जाता। वस्तुतः मेरा जीव तो परम धाम का होने से विशेष श्रेष्ठ है, अतः वो तारतम्य ज्ञान का अखंड प्रकाश क्यों नहीं फैलाएगा। सदगुरु के चरणों की अनुकंपा सदगुरु से मिलाप करवा कर श्री गोवर्धन ठाकुर अथवा गुणवंती बाई की वासना द्वारा मेरे ऊपर किया गया उपकार तथा रतनबाई अथवा बिहार जी की विशेष अनुकंपा के कारण श्रीमुख वाणी अवतरित हुई। इस प्रकार इन सब के कृपा द्वारा मैंने धामधनी को पहचाना। इस प्रकार इन सब की दया के कारण मेरे हृदय में अखंड ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करूंगी और धामधनी के चरण कमलों को अपने हृदय में रखूंगी। धामधनी के चरणों में इंद्रावती प्रणाम करके इस मनुष्य जीवन को सफल बनाती हैं। इस प्रकार इन सब की दया के कारण मेरे हृदय में अखंड ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करूंगी और धामधनी के चरण कमलों को अपने हृदय में रखूंगी। धामधनी के चरणों में इंद्रावती प्रणाम करके इस मनुष्य जीवन को सफल बनाती हैं। श्री इंद्रावती प्रणाम करके इस मनुष्य जीवन को सफल बनाती हैं। चौपाई 22 प्रकरण 21 चौपाई 547। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। श्री तारतम सागर प्रकाश गुजराती नेपाली स्वरूपको 21औं प्रकरण जीवलाई उपदेश। हे जीवात्मा सुना, अब तँलाई एक उदाहरण दिएर वृत्तान्त सुनाउँछु। एकाग्र चित्त लिएर सुना। यी सबै कुरा तँलाई प्रेम पूर्वक तेरो भलाइका लागि भन्दछु। राजा परीक्षितले यसरी प्रश्न गरेका थिए, हे सुखदेवजी, 14 लोकमा सर्वश्रेष्ठ को छ?
मलाई यसको उत्तर दिनुहोस्। तब सुखदेवजीले उनलाई भने, मेरा उत्तम कुरा सुनेर ग्रहण गर। 14 लोकमा सर्वश्रेष्ठ त्यो हो जो महान बुद्धिको मालिक छ। फेरि परीक्षितले सोधे, महान बुद्धि भएको भनेर कसरी जानिन्छ? सुखदेवजीले भने, म तिमीलाई महान बुद्धिवालाको परिचय दिँदैछु। हे परीक्षित, त्यसलाई सार तत्व सम्झेर ग्रहण गर। महान बुद्धि त्यसैलाई भनिन्छ जुन जीवलाई अक्षरातीत श्रीकृष्ण प्रिय लाग्दछ। बुद्धिहरूमा पनि उत्तम बुद्धिको सार यही हो। अब अन्य बुद्धिहरूको तत्व प्रकट गर्दैछु। अक्षरातीत श्रीकृष्णमा प्रेम गर्ने बुद्धिका अतिरिक्त जति पनि अन्य मायामय बुद्धिहरू छन् तिनलाई कुबुद्धि सम्झिनु। कुबुद्धि त्यसलाई भनिन्छ जो सर्वाधिक नीच र हल्का विचारको हुन्छ। यसको यति ठुलो विवरण के छ? यस विषयमा उदाहरण दिएर भन्दैछु। हे परीक्षित, जो ठुलो बुद्धिको धनी छ त्यसको कुरा सुन। विशाल बुद्धिले प्राण वल्लभ श्रीकृष्ण परमात्मालाई सर्वस्व मान्दछ। यस्तो बुद्धि भएको मानिस आधा क्षणमा नै भवसागर पार हुन्छ। त्यसका लागि यो मायामय संसार बाधक बन्दैन। त्यो निश्चित रूपले अखण्ड आनन्द प्राप्त गर्दछ। जसलाई कुमति भनिएको छ त्यो कस्तो हुन्छ? त्यो त अन्ध्यारो कुवामा खसेर त्यही बसिरहन्छ। हे जीव, यी कुरा सुखदेवजीका हुन् जसलाई विचारपूर्वक सुन्नु पर्दछ। ती कथन केवल विचार गर्नका लागि होइनन्। त्यसकारण हे जीव, तेरो शरीरको निर्माण त श्वासै श्वासमा बाँधिएको छ। त्यो श्वासको पनि भरोसा छैन। त यस्तो कति दिन श्वास लिन सक्दछस्? एकै क्षणमा कयौं पटक आउँछ जान्छ। त्यसको सदुपयोग नगरे त्यो व्यर्थमै जान्छ। जसरी काटेको कपासलाई त्यसै राखेमा फेरि त्यसको पूर्व रूप ग्रहण गर्दछ। त्यसकारण हे जीव, त प्रेमपूर्वक मेरा कुरा सुन। मैले विशाल बुद्धिको विवेचन गरेर तँलाई सम्झाइरहेको छु। यो मनुष्य जीवन तँलाई प्राप्त भएको छ। यसको प्रशंसा यस जिब्रोले कसरी गरौं? यतिका दिनसम्म यसको महत्व तँलाई सम्झाए। यसलाई जानेपछि त अनजान बनेर मूर्खले जस्तै काम गर्दछस्। हे जीवात्मा, त अब यी कुरामाथि राम्ररी विचार गर। सुखदेवजी यसका साक्षी छन्। अब अन्तमा म एक कुरा भन्दछु, त्यसलाई सुन। प्रियतम प्रभु श्रीकृष्णका चरण कमललाई समातेर बस। त फेरि सद्गुरुका वचन सुन र उहाँको उपदेशमय बानी एकाग्र चित्तले ग्रहण गर। एक क्षणका लागि पनि त प्रभुबाट अलग नहो, किनभने यस्तो मौका तँलाई फेरि मिल्ने छैन। हे जीव, तेरो भ्रम तोड्नका लागि मैले यी कुरा भनेको हुँ। त विशाल बुद्धिलाई धारण गरेर धन्य बन। अब राम्ररी चिनेर भ्रम र भ्रान्तिलाई हटा। जबसम्म अन्तरात्मामा यी कुरा पुग्दैनन् तबसम्म केवल भनेर मात्र के हुन्छ? त्यो त योभन्दा पहिले भक्तजनहरूद्वारा पनि परमात्मा र विशाल बुद्धिको विषयमा अनेक कविताहरू रचिएका छन्। तर इन्द्रावती निर्मित कृतिहरू अक्षरातीतको वर्णन हुनाले अरूभन्दा विशिष्ट छन्। तर प्रभुको श्रीमुखबाट निश्रित यस बानीको सार्थकता तब मानिनेछ जब जीवले त्यसलाई सम्झेर ग्रहण गर्नेछ। यो बानी कुनै कविको कल्पना जस्तो होइन। मैले मेरो जीवलाई उत्तेजित गर्नका लागि मैले यसरी भनेको हुँ। मेरो जीव अत्यन्त चतुर र प्रवीण छ। निश्चित रूपले त्यसले प्रभुका चरणलाई कहिल्यै छोड्दैन। तर त्यो सत्य तब हुनेछ जब प्रभुका बानीलाई प्रकाशित गर्दछ, जसबाट यस ज्ञानको अखण्ड ज्योति आकाशसम्म पुगेर त्योभन्दा पनि अगाडि जानेछ। यस शरीरबाट ज्ञानको यस्तो ज्योति प्रकट भएको छ त्यसको प्रकाश 14 लोकमा पनि असीमित हुन्छ। यदि हामी यस्तो गर्दैनौँ भने अरू कसले गर्नेछ? सद्गुरुले हाम्रा लागि अर्को पतज्ञ धारण गर्नुभएको छ। इन्द्रावती भन्नुहुन्छ, यस जीवलाई कुनै प्रकारको लाज छैन। त्यो सद्गुरुको दर्शन मात्रले विनम्र किन हुँदैन? वास्तवमा मेरो जीव त विशेष श्रेष्ठ छ। त्यसकारण त्यो तारतम ज्ञानको अखण्ड प्रकाश किन फैलाउँदैन? सद्गुरुका चरणको कृपा उहाँसँग मिलाप गराएर श्री गोवर्धन ठाकुरद्वारा अथवा गुणवन्ती बाईले ममाथि गरिएको कृपा र
रतन भाइको विशेष दयाका कारण श्रीमुख बानी अवतरित भयो। यसरी यी सबै कृपाले मैले प्रभुलाई चिने। यसरी यी सबै दयाका कारण मेरो हृदयमा अखण्ड ज्ञानको ज्योति प्रज्वलित गर्नेछु र प्रभुका चरण कमललाई आफ्नो हृदयमा राख्नेछु। प्रभुका चरणमा म इन्द्रावती प्रणाम गरेर यस मानव जीवनलाई सफल बनाउँछु। यसरी यी सबै दयाका कारण मेरो हृदयमा अखण्ड ज्ञानको ज्योति प्रज्वलित गर्नेछु र प्रभुका चरण कमललाई आफ्नो हृदयमा राख्नेछु। प्रभुका चरणमा म इन्द्रावती प्रणाम गरेर यस मानव जीवनलाई सफल बनाउँछु। प्रभुका चरणमा म इन्द्रावती प्रणाम गरेर यस मानव जीवनलाई सफल बनाउँछु। चौपाई 22 प्रकरण 21 चौपाई 547। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।